Hello kids, welcome to the class of computer class 5. The chapter number is 3, Advanced Features of MS Word. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to apply the styling features in MS Word. So kids, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप किन फीचर्स के बारे में लर्न करेंगे? आप लर्न करेंगे कि कैसे जो है आप MS वर्ड में स्टाइलिंग फीचर्स को अप्लाई कर सकते हो, इंसर्ट सिंबल्स एंड शेप्स, एंड MS वर्ड में कैसे आप सिंबल्स एंड शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो, सेट द पेज मार्जिन्स, साइज, ओरिएंटेशन एंड कलर्स, एंड कैसे जो है आप पेज मार्जिन्स को, साइज को एंड कलर्स ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हो. हाउ टू यूज थेशर्स टू इम्प्रूव वोकैबुलरी. एंड किड्स, आप जो है MS वर्ड में थेशर्स का कैसे यूज कर सकते हो वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए, वो भी आप देखेंगे. सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन. वार्म अप. कैन यू मेक अ फ्रेंडशिप कार्ड? हियर आर सम क्लूज. Ask your parents to allow you to use their computer and make a friendship card to celebrate the Friendship Day with your friends. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको जो है कंप्यूटर पे हेल्प से रिपीट. सो किड्स, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको जो है कंप्यूटर में अपने फ्रेंड के लिए फ्रेंडशिप डे का कार्ड बनाना है टू सेलिब्रेट दैट. एंड किड्स, यहाँ पे जो है आपको फ्रेंडशिप कार्ड का जो है एग्जाम्पल गिवन है, इससे हेल्प लेकर आप बना सकते हो. टीचर्स नोट. With the help of the above activity, introduce the students to the advanced features of MS Word 2016. So kids, this activity will be performed by a teacher in your classroom. Hi friends, let's learn about the advanced features of MS Word. It helps us to learn various styling features. Microsoft Word 2016 is the most popular word processor developed by Microsoft Corporation. It is one of the world's largest companies in software development. So kids, Microsoft Corporation ने जो है Microsoft Word 2016 को जो है डेवलप किया, and ये जो है largest company है in the software development. Word 2016 has the ability to create, read, edit and share files at one very easily. Formatting can also be done in the documents. Let's further study the advanced features of MS Word 2016. So kids, अब जो हम MS Word 2016 के कुछ advanced features के बारे में पढ़ते हैं. MS Word Styles. Styling is the process of altering the font's appearance in terms of size, color and themes. In MS Word, we can change the style of any text in a sentence or paragraph. So kids, styling क्या होता है? Styling वो प्रोसेस होता है जिसमें हम फॉन्ट की अपीयरेंस को चेंज करते हैं, यानी उसमें स्टाइल का चेंज करते हैं, कलर्स चेंज करते हैं एंड थीम्स वगैरह भी चेंज करते हैं. एंड MS Word में जो है हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है लाइन्स की, सेंटेंसेस की, पैराग्राफ की जो है स्टाइलिंग कर सकते हैं. We can use the styles options which include predetermined styles to quickly change the font style. So हम जो है styles option को choose करके वहाँ से जो है काफ़ी सारे predetermined styles already available है, और वहाँ से जो हम quickly font style change कर सकते हैं. Styling features can be applied to the following elements. So kids, styling features जो है किन elements पे हम apply कर सकते हैं? Paragraph. The outlook of a paragraph can be changed completely by changing its style. A paragraph consists of different options like heading, quote, index, header, footer, bibliography, salutation, address and much more. So kids, पहला एलिमेंट है पैराग्राफ, जिसको जो हम completely उसकी अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं by styling it. एंड इसमें जो है काफ़ी सारी चीज़ें कंसिस्ट होती है, जैसे हेडर, फुटर हो गया, आपकी बिब्लियोग्राफी हो गई, कंटेंट हो गया, titles हो गए, everything is included in the paragraph. Character. The smallest element in a Word document is a character. So kids, जो सबसे smallest element है पूरे Word document में वो क्या है? That is character. Do you know? Using the Design a Style option provided in the Styles drop-down list, you can build your own special styles. So kids, आपको जो है
स्टाइल ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो है एक ऑप्शन है विच इज़ डिज़ाइन अ स्टाइल। अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप जो है अपना खुद का डिज़ायर्ड भी स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। लिंक्ड कंटेंट। Linked content is a mix of paragraphs and characters. It has styles available for both paragraphs and characters. So kids, link content क्या है? ये जो है paragraphs और characters का mix है and इसमें जो है paragraphs and characters दोनों के लिए styles जो है available है। Table. There are different table styles available such as plain table, grid table, list table, colorful grid and many more. सो किड्स टेबल में जो है काफ़ी सारे टेबल के स्टाइल्स हैं जो डिफरेंटली अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका प्लेन टेबल हो गई, ग्रिड टेबल हो गई, कलरफुल ग्रिड हो गया एंड आपकी जो है लिस्ट टेबल हो गई। लेट मी आंसर व्हाट इज अ पैराग्राफ। सो किड्स, नाउ यू विल राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। लिस्ट। अ लिस्ट कंटेन्स ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स। Follow the following steps to apply styles to a paragraph. So kids, repeat. So kids, list में क्या होता है? दो तरह के items present होते हैं, एक होता है ordered and एक होता है unordered list. अब kids हम जो है कुछ steps को read करेंगे कि हम जो है paragraph में कैसे styles को apply कर सकते हैं। 1. Select the desired paragraph. सबसे पहले जो आप अपना desired paragraph जिसमें आप change करना चाहते हैं उसको select करेंगे। 2. In the style group, click on the more option. उसके बाद किड्स आप जो है स्टाइल ग्रुप में जाकर जो है मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 3. A drop down containing different style options will appear. एंड किड्स एक ड्रॉप डाउन होगा जिसमें काफ़ी सारे डिफरेंट स्टाइल्स जो है प्रेजेंट होंगे, वो आपकी स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा। 4. Place the cursor over the desired style. उसके बाद जो है आप कर्सर को उस डिजायर्ड स्टाइल पे रखेंगे। 5. See the change in the selected text. एंड आप देखेंगे कि आपने जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया था उसमें स्टाइल चेंज हो जाएगा। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अप्लाइंग स्टाइल्स टू अ पैराग्राफ। सबस्क्रिप्ट। You must have observed TH after some numbers like 2 after some letters in chemical formulas. So kids, आपने कुछ ऐसे नंबर्स देखे होंगे जिसमें उसके बाद जो है TH लिखा होता है एंड कुछ केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें 2 मेंशन होता है। Denoting a number or letter above or below the baseline makes it either a superscript or subscript. So kids, जब हम किसी लेटर और किसी नंबर को बेस लाइन से ऊपर की 2 वर्ड्स और नीचे की 2 वर्ड्स उसको मेंशन करते हैं, सो उसको कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट। Let me answer. Tell the chemical formula which has the number as subscript. So kids, you will find the answer of this question on your own. Creating subscript. So kids, यहाँ पे जो आप पिक्चर को देख सकते हैं about creating subscript, कैसे यहाँ पे जो है बेस लाइन के नीचे की साइड जो है 2 लिखा गया है। The subscript option places the selected text slightly below the baseline and makes it appear smaller than the rest of the text. So kids, MS Word में subscript option जो है वो क्या करता है, वो लेटर को जो है बेस लाइन के नीचे की 2 वर्ड्स जो है प्लेस कर देता है एंड वो स्मॉलर इन साइज होता है बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स से। Follow the following steps to create a subscript. 1. Type the formula CO2 and select 2. So kids, सबसे पहले जो है आप CO2 फॉर्मूला टाइप करेंगे एंड उसमें से जो है 2 नंबर को सेलेक्ट करेंगे। 2. From the font group select the subscript option. एंड किड्स, फिर आप जो है फॉन्ट ग्रुप में जाके जो है सबस्क्रिप्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 3. You will notice that the 2 will be placed below the baseline. एंड किड्स, उसके बाद आप नोटिस करेंगे जैसे ही आपने सेलेक्ट करा उस ऑप्शन को, जो 2 है वो आपकी बेस लाइन से नीचे की 2 वर्ड्स आ जाएगा एंड आपका फॉर्मूला जो है क्रिएट हो जाएगा एज CO2. Superscript. The superscript option places the selected text slightly above the baseline and makes it appear smaller than the rest of the text. So kids, superscript क्या रिपीट। सो किड्स, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ये एक ऐसा ऑप्शन होता है जो लेटर्स को या जो वर्ड्स को जो है आपके
बेस लाइन की स्लाइटली ऊपर की टूवर्ड्स लिखता है एंड वो छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द लेटर्स. Follow the following steps to create a superscript. 1. Type the date 10th April and select TH. So kids, सबसे पहले जो है आप वर्ड पे डेट टाइप करेंगे विच इज 10th April एंड उसमें से जो है TH को सेलेक्ट करेंगे. 2. From the font group select the superscript option. Then kids, आप जो है font group में जाके superscript option को सेलेक्ट करेंगे. 3. You will notice that the TH will be placed above the baseline. And उसके बाद जो आप देखेंगे TH जो आपने सेलेक्ट किया था वो जो है बेसलाइन से ऊपर की तरफ होगा. And kids, here you can see the picture of creating superscript. इस स्टेट में आप देख सकते हैं TH जो है ऊपर की साइड प्लेस्ड है. Remember it. By pressing Ctrl plus Shift plus key combination, you can create superscript. सो किड्स, सुपरस्क्रिप्ट को क्रिएट करने का एक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस की. बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की कॉम्बिनेशन यू कैन क्रिएट सुपरस्क्रिप्ट. सो किड्स, सुपरस्क्रिप्ट को क्रिएट करने की एक शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है विच इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस की. इसको आप कंबाइनली प्रेस करेंगे तो आपका जो सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन जो है अप्लाई हो जाएगा. इंसर्टिंग सिंबल्स. सिंबल्स आर स्पेशल कैरेक्टर्स. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू इंसर्ट सिंबल्स. सो किड्स, अब हम देखेंगे सिंबल्स को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. सिंबल्स जो है कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में. 1. टेक द कर्सर टू द पॉइंट वेयर यू विश टू इंसर्ट द सिंबल. सो किड्स, जिस एरिया पे आप जो है सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हैं पहले आप वहाँ पे जो है कर्सर को प्लेस करेंगे. 2. गो टू द सिंबल्स ग्रुप इन द इंसर्ट टैब एंड सेलेक्ट द सिंबल बटन. उसके बाद किड्स आप जाएंगे सिंबल्स ग्रुप में इंसर्ट टैब के अंदर एंड वहाँ से जो आप सिंबल बटन को सेलेक्ट करेंगे. 3. पिक अ सिंबल ऑफ योर चॉइस और चूज द मोर सिंबल्स ऑप्शन. एंड किड्स, उसके बाद आप जो है जो सिंबल आपको डिजायर्ड है वो आप चूज करेंगे या आप जो है मोर सिंबल्स ऑप्शन पे भी चूज कर सकते हो. 4. व्हेन यू फाइंड द सिंबल ऑफ योर चॉइस डबल क्लिक ऑन इट. एंड किड्स, जैसे ही आपको अपना डिजायर्ड सिंबल मिल जाए आप उस पर डबल क्लिक करेंगे. 5. द सिंबल विल बी इंसर्टेड एट द डिजायर्ड प्लेस. एंड सिंबल जो है डिजायर्ड प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा. 6. क्लिक ऑन द कैंसिल बटन. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप पिक्चर को देख सकते हैं सिंबल्स की, यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स जो है आपको शो हो रहे हैं एंड आप सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एंड वो हो जाएगा. Undo and redo commands. MS Word 2016 keeps the record of all the alterations that we do in a document. The undo command allows you to discard the most recent change. सो किड्स, MS Word 2016 क्या करता है, हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑल्ट्रेशंस चेंजेस करते हैं वो उसका रिकॉर्ड रखता है. जैसे अनडू कमांड है, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो भी चेंज हमने रिसेंट करा है अपने डॉक्यूमेंट पे उसको उस पर डिस्कार्ड कर सकते हैं. द रीडू कमांड रिवर्सेस द मोस्ट रिसेंट चेंज मेड यूजिंग अनडू. सो किड्स, अनडू से जो भी हमने रिसेंट चेंज करा होता है उसको हमें वापस करने के लिए यानी उसको रिवर्स बैक करने के लिए हम जो है रीडू कमांड का यूज करते हैं. These buttons appear in the quick access toolbar in Microsoft by default. So kids, जो undo and redo commands के बटन है वो by default Microsoft में जो है quick access toolbar में present है. And kids, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं quick access toolbar की पिक्चर को. दिस इज द क्विक एक्सेस टूल बार. इसके अंदर जो है आपका अनडू बटन एंड दिस इज योर रीडू बटन प्रेजेंट है. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू अनडू द लास्ट एक्शन. सो किड्स, आप लास्ट एक्शन को कैसे अनडू कर सकते हो उसके कुछ स्टेप्स हैं. 1. ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक अनडू. ऑल्टरनेटिवली यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस Z. सो किड्स, आप जो है क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके अनडू पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो या ऑल्टरनेटिवली आप कंट्रोल प्लस Z को क्लिक करेंगे, आपका जो है अनडू हो जाएगा. 2. Click the drop down arrow next to undo if you want to undo several actions at the same time. So kids, आप अगर एक ही सेम टाइम पे बहुत सारे एक्शंस को जो है
अंडू करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप जो है अंडू बटन के नेक्स्ट पे ड्रॉप डाउन एरो है उस पर क्लिक करेंगे। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू रीडू द लास्ट एक्शन। सो किड्स, लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए आप क्या स्टेप्स करेंगे, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक रीडू। क्विक एक्सेस टूल बार पे जाके आप रीडू पे क्लिक करिए। ऑल्टरनेटिवली यू कैन प्रेस Ctrl+Y एंड ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप Ctrl+Y की कॉम्बिनेशन करेंगे तो आपका जो है एक्शन रीडू हो जाएगा। पेज सेटिंग्स। In Word, we have options for formatting the page and also for setting the page properties. So kids, Word में जो है हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम जो है पेज की भी फॉर्मेटिंग कर सके एंड इसमें जो है पेज की सेटिंग की प्रॉपर्टीज को भी चेंज कर सके। सेटिंग मार्जिन्स। सो किड्स, आप जो है मार्जिन्स को कैसे सेट कर सकते हो वर्ड में वो देखते हैं। A margin is the amount of space between the text and the edge of the page. The default margins are set at 1 from top and bottom and 1 from the left and right edge of the page. So kids, margin होता क्या है? Margin जो है एक space होता है जो आपके text के और paper के edge के बीच में present होता है। And word में जो है by default जो margin set है वो 1 set है from the top to bottom and also from the left to right it is set as 1. In Word 2016, we can manually set the margin on all 4 sides of a document. So kids, हम Word 2016 में जो है manually भी margins को update कर सकते हैं, उसमें changes कर सकते हैं from all the 4 corners of the document. Follow the following steps to set the page margins. 1. Click on the layout tab. सबसे पहले आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। इन दी पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप पे जाकर है आप सेलेक्ट करेंगे मार्जिन्स बटन को। 3. सेलेक्ट द मार्जिन फ्रॉम द लिस्ट और कस्टमाइज इज एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है आप लिस्ट में से मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे या आप अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज भी कर सकते हो। 4. टाइप द वैल्यूज फॉर टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स एंड फिर आप जो है 4 एरियाज के लिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स के लिए जो है वैल्यूज को टाइप करोगे। 5. इन दी अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज द ऑप्शन होल डॉक्यूमेंट एंड किड्स, फिर आप जो है अप्लाई टू ड्रॉप डाउन लिस्ट में से चूज करेंगे कौन से ऑप्शन को, होल डॉक्यूमेंट को। 6. क्लिक ओके एंड उसके बाद जो है आप क्लिक ओके करेंगे। एंड किड्स, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं अबाउट द पेज सेटअप को, यहाँ से जो है आप मार्जिन सारे सेलेक्ट करेंगे, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट एंड उसके बाद जो है आप यहाँ पे अप्लाई टू पे होल डॉक्यूमेंट करेंगे एंड देन एज द लास्ट स्टेप यू विल क्लिक ऑन द ओके। आपके जो है सारे डिजायर्ड चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। सेटिंग पेपर ओरिएंटेशन। सो किड्स, आप पेपर की ओरिएंटेशन को कैसे सेट कर सकते हो? The property to set the printing direction of the text is called page orientation. So kids, पेज ओरिएंटेशन होता क्या है, जब आप प्रिंटिंग की डायरेक्शन को चेंज करते हैं, यानी टेक्स्ट का जो डायरेक्शन होता है प्रिंटिंग का, उसकी प्रॉपर्टीज में जब आप ऑल्ट्रेशंस करते हैं, इट इज सेड टू बी एज पेज ओरिएंटेशन। इट इज ऑफ 2 टाइप्स, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप ओरिएंटेशन। सो किड्स, जो पेपर ओरिएंटेशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट एंड दूसरा होता है लैंडस्केप। द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इज पोर्ट्रेट विच इज वर्टिकल एंड किड्स, MS वर्ड में जो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन है वो एज अ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन सेव है विच इज वर्टिकल। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू चेंज पेपर ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। सो किड्स, आप जो है पोर्ट्रेट से कैसे उसको लैंडस्केप में चेंज कर सकते हो, उनके कुछ स्टेप्स हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ पेज ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाके यू हैव 2 ऑप्शंस, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। यहाँ से जो आप इनको सेलेक्ट करो। 1. क्लिक ऑन द लेआउट टैब। सबसे पहले आप लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे। 2. इन द पेज सेटअप ग्रुप क्लिक ऑन द ओरिएंटेशन बटन एंड किड्स, आप पेज सेटअप ग्रुप में जाके जो है ओरिएंटेशन बटन पे क्लिक करेंगे। 3. फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज द लैंडस्केप ओरिएंटेशन एंड फिर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो है लैंडस्केप ओरिएंटेशन को चूज करेंगे। 4. The orientation of the page changes to landscape
एंड किड्स उसके बाद जो है आपका ओरिएंटेशन जो है चेंज हो जाएगा, किसमें, लैंडस्केप ओरिएंटेशन में। सेटिंग पेज साइज। अब किड्स आप पेज के साइज को कैसे सेट कर सकते हो वो देखते हैं। In Word 2016, different sizes of paper can be used to write a document. Follow the following steps to change the page size of the Word. So kids, आप जो है काफ़ी सारे जो है साइजेस को यूज़ कर सकते हो डॉक्यूमेंट को टाइप करने के लिए, एंड कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू आप कैसे चेंज कर सकते हो। 1. Click on Layout tab. 2. In the Page Setter group, click on the Size button. सो किड्स, आप जो है लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे पेज सेटर ग्रुप पे जाके आप क्लिक करेंगे साइज बटन पर। 3. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, द करेंट पेज साइज इज हाईलाइटेड, एंड वहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है अपीयर हो जाएगा, एंड वहाँ पे जो आपका अभी करेंट साइज होगा पेज का वो वहाँ पे हाईलाइटेड होगा। 4. सेलेक्ट द डिजायर्ड पेज साइज ऑप्शन, वहाँ से जो है आप अपना डिजायर्ड पेज साइज ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। 5. द साइज ऑफ द पेज विल चेंज, एंड इसके बाद जो है आपके पेज का साइज जो है चेंज हो जाएगा। एंड किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पेज साइज की पिक्चर को। सबसे पहले आप जाएंगे लेआउट टैब पे, वहाँ पे आप जाएंगे पेज सेटअप पे, एंड उसके बाद जो है आप यहाँ से साइज में से ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे। वर्किंग विथ शेप्स। ऑटो शेप्स इज अ टूल टू हेल्प यू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स ऑन योर डॉक्यूमेंट. There are many shapes such as lines, call out, equation shapes and many more. So kids, auto shapes tool क्या है? ये एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू जो है आप रेडीमेड ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। जैसे काफ़ी सारी शेप्स हो गई, लाइक लाइन्स हो गई, कॉल आउट हो गया, इक्वेशंस ड्रॉ करनी है, एरोज बनाने हैं, तो आप जो है ऑटो शेप्स की हेल्प से कर सकते हो। एंड किड्स, इस पिक्चर में जो आपको शेप्स की पिक्चर्स दिखा रखी हैं, दिस इज दी shapes which you get in the MS Word. Multiple shapes होती है, आप कोई भी select कर सकते हो। Follow the following steps to insert a shape in the document. 2. In the illustration group, select the shapes button. So kids, सबसे पहले जब आप insert टैब पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे आप illustration group में select करेंगे shapes के बटन को। 3. A drop down menu will display. उसके बाद जो है एक drop down menu जो है वो display हो जाएगा। 4. Click on the desired shape, एंड वहाँ से जो है उस लिस्ट में से आप अपनी desired shape को select करेंगे। 5. The mouse pointer changes to plus sign, एंड किड्स select करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि आपका जो माउस पॉइंटर है वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा। 6. Take the plus sign to the desired place in the document and drag it to add the shape, एंड किड्स उसके बाद जो है प्लस साइन को उस जगह पर लेकर जाएंगे जहां आप पिक्चर को ड्रॉ करना चाहते हैं, एंड उसके बाद जो है वहाँ पे उसको ड्रैग करेंगे एंड आपकी डिजायर्ड शेप जो है ड्रॉ हो जाएगी। प्लेसिंग टेक्स्ट इन अ शेप। किड्स, अब आप जो है शेप में कैसे टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं वो देखते हैं। टेक्स्ट कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड इन द शेप। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू एड टेक्स्ट इन अ शेप। 1. सेलेक्ट द शेप यू वांट टू एड टेक्स्ट इन। सो किड्स, सबसे पहले जो है आप उस शेप को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं। 2. राइट क्लिक ऑन इट, उसके बाद आप वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। 3. अ पॉपअप मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट द एड टेक्स्ट ऑप्शन, उसके बाद वहाँ पे जो है राइट क्लिक करने के बाद एक पॉपअप मेन्यू अपीयर हो जाएगा, एंड वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है एड टेक्स्ट ऑप्शन को। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ प्लेसिंग टेक्स्ट इन अ शेप। आप जो है यहाँ पे जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड वहाँ से जो है आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो शेप में। 4. नाउ टाइप द टेक्स्ट इन द प्लेस होल्डर, एंड किड्स वहाँ पे एक प्लेस होल्डर ओपन हो जाएगा एंड वहाँ पे आप कीबोर्ड की हेल्प से जो है टेक्स्ट को टाइप करेंगे। 5. क्लिक आउटसाइड द प्लेस होल्डर टू कंप्लीट द टास्क, एंड टाइप करने के बाद आप जो है प्लेस होल्डर के आउटसाइड पे क्लिक करेंगे, एक ब्लैंक स्पेस पे आपका जो है टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एंड किड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइपिंग टेक्स्ट इन अ शेप, दिस इज योर प्लेस होल्डर। यहाँ पे आपने टाइप किया है कंप्यूटर क्लास 5th, एंड उसके बाद जो आप एक ब्लैंक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है डिजायर्ड टेक्स्ट टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट इज थेसियर्स। Microsoft Word includes a tool that enables you to perform synonym and antonyms searches using the thesaurus. So kids, आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जो है किसी भी वर्ड का जो है सिनोनिम और एंटोनिम्स अगर आप सर्च करना चाहते हैं, यू वांट टू सर्च द वोकैबुलरी,
सो यू विल चूज द ऑप्शन थेशर्स, जिसकी हेल्प से जो आप कोई भी वर्ड की वोकैबुलरी सर्च कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो लुक अप फॉर अ सजेशन ऑफ अ वर्ड, एंड अगर आपको किसी वर्ड की सजेशन भी चाहिए तो वहाँ पे जाके जो है आप देख सकते हो। सो किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ थ्रेशर्स। आप सबसे पहले जो है रिव्यू टैब पे जाएंगे एंड वहाँ पे आपको जो है प्रूफिंग ग्रुप के अंदर जो है ऑप्शन मिलेगा विच इज थ्रेशर्स, जिसका आइकन जो है बुक शेप में है। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू यूज द थ्रेशर्स। 1. Select the word for which you want a synonym or antonym. सो किड्स, सबसे पहले जिस वर्ड का आपको सर्च चाहिए, यानी जिस पर्टिकुलर वर्ड का आपको सिनोनिम और एंटोनिम चाहिए, सबसे पहले आप उस वर्ड को सेलेक्ट करोगे। 2. Click on the review tab. 3. In the proofing group, select the freshers option. फिर किड्स, आप जो है रिव्यू टैब पे जाके प्रूफिंग ग्रुप में सेलेक्ट करेंगे फ्रेशर्स ऑप्शन को। 4. The research task pane appears with the synonyms and antonyms. एंड किड्स, उसके बाद जो एक रिसर्च टास्क पेन जो है अपीयर हो जाएगा, इसमें काफ़ी सारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स प्रेजेंट होंगे। 5. चूज द डिजायर्ड वर्ड एंड सेलेक्ट द इंसर्ट ऑप्शन, एंड उस लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड वर्ड चूज करेंगे एंड क्लिक करेंगे इंसर्ट ऑप्शन पे। 6. द एग्जिस्टिंग वर्ड विल बी चेंज्ड विद द न्यू वर्ड, एंड आपका जो एग्जिस्टिंग वर्ड था जो आपने सेलेक्ट किया था वो न्यू वन में चेंज हो जाएगा। And kids, here you can see the picture of search for synonyms or antonyms. आपने जो है यहाँ पे वर्ड टाइप करेंगे एंड उसके बाद जो है लेट्स सपोज आपने स्पीच जो है चूज किया एंड यहाँ से जो है आप इंसर्ट करेंगे एंड उसके बाद जो आपका सिलेक्टेड वर्ड था वो चेंज हो जाएगा। ड्रॉप कैप इफेक्ट। अ ड्रॉप कैप dropped capital is a large capital letter used as a decorative element at the beginning of a paragraph or section. The size of a drop cap is usually 2 or more lines. So kids, drop cap effect क्या होता है? इसके अंदर जो है drop cap या जिसको हम drop capital भी कहते हैं, वो क्या होता है? एक large capital letter होता है जो कि डॉक्यूमेंट को डेकोरेटिव बनाने में और उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है एंड वो लेटर जो है उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग में या किसी सेक्शन की स्टार्टिंग में लिखा जाता है एंड यूजुअली जो उसका साइज होता है विच इज़ अराउंड फॉर 2 to more लाइन्स तक का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्रॉप कैप। ड्रॉप्ड ऑप्शन अलाउस यू टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप दैट फिट्स विद इन योर पैराग्राफ। सो किड्स, 2 टाइप्स के जो है ड्रॉप कैप होते हैं। एक होता है ड्रॉप, जिस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हैं, आपका जो ड्रॉप कैप है यानी जो आपका कैपिटल लेटर है वो जो है आपकी पैराग्राफ में फिट हो जाता है। इन मार्जिन ऑप्शन अलाउस टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप दैट इज इन द मार्जिन आउटसाइड ऑफ योर पैराग्राफ। एंड किड्स, इन मार्जिन ऑप्शन से क्या कर सकते हैं आप जो है कैपिटल लेटर को आउटसाइड द पैराग्राफ में भी कर सकते हैं एंड वो जो है मार्जिन्स के अंदर होता है। सो किड्स, यहाँ पे आप पिक्चर्स को देख सकते हैं ड्रॉप कैप इफेक्ट को। यहाँ पे ड्रॉप कैप का आपके पास ऑप्शन है एंड यहाँ से जो है ड्रॉप्ड या इन मार्जिन को कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो एंड जैसे ही आप करेंगे तो आप यहाँ पे इसका सैम्पल देख सकते हैं। दिस H लेटर इज द ड्रॉप्ड कैप, जो पैराग्राफ की स्टार्टिंग में हाईलाइट करके यूज किया जाता है टू डेकोरेट इट। Follow the following steps to apply drop cap effect. 1. Select the first letter of a paragraph. आप अपने पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को सेलेक्ट करेंगे। 2. Click on the insert tab. 3. Select drop cap button and a drop down menu appears. एंड फिर आप इंसर्ट टैब पे जाके क्लिक करेंगे एंड वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप कैप बटन को एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है अपीयर हो जाएगा। 4. Select either dropped or in margins as per your requirement. एंड किड्स, वहाँ से जो है आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप या तो ड्रॉप्ड या तो इन मार्जिन्स को सेलेक्ट करोगे। 5. Selected character will be changed. एंड जो लेटर आपने सेलेक्ट किया था वो जो है चेंज हो जाएगा, उसका साइज जो है बिगर हो जाएगा। Header and footer. Information is added to the top and bottom of each page using the header and footer respectively. सो किड्स, जब आपको अपने पेज में बॉटम और टॉप पे इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो आप जो है हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। अगर आपको टॉप पे इंफॉर्मेशन डालनी होती है तो यू विल यूज़ हेडर एंड अगर आपको बॉटम में डालनी होती है सो यू विल यूज़ द फुटर ऑप्शन। फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड अ हेडर टू योर डॉक्यूमेंट। सो किड्स, आप अपने डॉक्यूमेंट में हेडर को कैसे डाल सकते हैं उसके कुछ स्टेप्स हैं। 1. Click on the insert tab.
2 in the header and footer group, select the header button. So kids, सबसे पहले जो आप insert टैब पे क्लिक करेंगे वहाँ पे आप header and footer group में जाएंगे and header button पर क्लिक करेंगे. 3. A drop down menu appears, select the blank option. And kids, फिर जो है एक drop down menu appears हो जाएगा, आपको जो है blank option पे select करना है. 4. A placeholder of the header will be displayed at the top margin of the document. And kids, उसके बाद जो है आपके पेज के टॉप मार्जिन पे जो है एक प्लेस होल्डर जो है हेडर का अपीयर होगा. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप पिक्चर देख सकते हैं अबाउट दी एडिंग हेडर. सबसे पहले जो है आप इंसर्ट टैब पे जाके जो है हेडर एंड फुटर में जाएंगे ग्रुप पे, एंड वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं एक लाइन जो है अपीयर हो गई है विद द नेम हेडर. एंड इस एरिया पे जो है आप टॉप इंफॉर्मेशन को पुट कर सकते हो. 5. क्लिक ऑन द प्लेस होल्डर टू ऐड टेक्स्ट. एंड फिर आप प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए. 6. इन द क्लोज ग्रुप, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन. एंड किड्स, फिर आप क्लोज ग्रुप में जाके जो है क्लिक करेंगे हेडर एंड फुटर बटन पे. 7. ऑब्जर्व द टॉप मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. एंड फिर आप अपने डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन को देखिए, वहाँ से हेडर की जो लाइन थी वो रिमूव हो जाएगी एंड आपका जो कंटेंट था वो टाइप्ड हो जाएगा. फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू ऐड अ फुटर टू योर डॉक्यूमेंट. 1. क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब. 2. इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप, सेलेक्ट द फुटर बटन. सो किड्स, इंसर्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आप जो हेडर एंड फुटर ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे फुटर बटन पे. 3. अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, सेलेक्ट द ब्लैंक ऑप्शन. एंड फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा एंड वहाँ से आपको ब्लैंक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ एडिंग फुटर. फुटर जो है बॉटम के टैब पे जब हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है तब जो है यहाँ पे वो अपीयर होता है. सो किड्स, जब आपको पेज के बॉटम पे जो है इंफॉर्मेशन को ऐड करना होता है तो पेज के बॉटम पे ऐसे फुटर अपीयर हो जाता है. 4. A placeholder of the footer will be displayed at the top margin of the document. 5. Click on the placeholder to add text. एंड फिर प्लेस होल्डर अपीयर हो जाएगा, आप उस पर क्लिक करिए टेक्स्ट को ऐड करने के लिए. 6. इन द क्लोज ग्रुप, क्लिक ऑन द क्लोज हेडर एंड फुटर बटन. एंड किड्स, आप एक क्लोज ग्रुप में जाके जो है क्लोज हेडर एंड फुटर बटन पर क्लिक करेंगे. 7. ऑब्जर्व द बॉटम मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट. रिमूविंग हेडर और फुटर. सो किड्स, अगर आपको हेडर और फुटर को रिमूव करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो. From the header drop-down menu, select remove header to withdraw header. And kids, आप जो है header drop-down menu में जाएंगे and select करेंगे remove header. वहाँ से जो है header आपका withdraw हो जाएगा. From the footer drop-down menu, select remove footer to withdraw footer. And footer drop-down menu में जाके आप select करेंगे remove footer और वहाँ से जो आपका footer remove हो जाएगा. Kids IQ. Harman is writing an article for her school magazine. She wants to use advanced vocabulary. Suggest her ways for the same. So kids, हरमन को जो है अपनी स्कूल के लिए जो है मैगजीन जो है टाइप करनी है, उसे लिखनी है. सो उसे जो है उसमें काफ़ी सारी वोकैबुलरीज यूज़ करनी है. सो वो कौन से वे से जो है वोकैबुलरी को यूज़ कर सकती हैं. सो किड्स, इन द MS Word she will use the option of hashes. Let's recall. Microsoft Word 2016 is the most popular word processor developed by Microsoft Corporation. Styling is the process of altering the font's appearance in terms of size, color, and themes. The subscript option places the selected text slightly below the baseline. So kids, जो subscript option है वो क्या करता है, वो जो है baseline से नीचे के two words जो है text को type करता है. A margin is the amount of space between the text and the edge of the page. Auto Shapes is a tool to help you draw objects on your document. Information is added to the top and bottom of each page using the header and footer respectively. So kids, header use किया जाता है जब आपको information पेज के top पे put करनी हो, and पेज के bottom के लिए आप use करते हैं footer. Upskill your intelligence. A. Fill in the blanks. 1. Microsoft Word is the word processor developed by Dash. Answer is Microsoft Corporation.
The smallest element in a Word document is a dash. Answer is character. 3. Linked content is a mix of dash and dash. Answer is paragraph and character. 4. A list contains dash and dash list items. Answer is ordered and unordered. 5. The subscript option places the selected text slightly dash the baseline. Answer is below. B. Answer in one word. 1. The process of altering the appearance of font in terms of size, color and themes. The answer is styling. 2. The option that places the selected text slightly above the baseline. Answer is superscript. 3. These are the special characters. Answer is symbols. 4. The command that allows you to discard the most recent change. Answer is undo command. 5. By default, undo and redo commands appear in this toolbar. Answer is quick access toolbar. C. Write T for true statements and F for false statements. 1. The outlook of a paragraph cannot be changed. False. 2. The redo command reverses the most recent change made using undo. True. 3. Press Ctrl plus U to apply undo command. False. 4. A margin is the amount of space between the text and the edge of the page. True. 5. The default page orientation is landscape, which is horizontal. False. D. Tick the correct answers. 1. In the word dash helps us look up for a suggestion of a word. Options are A. Header, B. Footer, C. Hashes, D. Drop cap effect. The correct answer is C. Hashes. 2. A tool that helps you draw objects on your document. Options are A. Font, B. Shapes, C. Symbols, D. Margins. The correct answer is B. Shapes. 3. Page size can be changed by clicking on Dash tab. Options are A. File, B. Insert, C. Design, D. Layout. The correct answer is D. Layout. 4. Dropped and in margins are two options of dash. A. Margins, B. Drop cap effect, C. Paragraph, D. Insert. The correct answer is B. Drop cap effect. 5. The information which is added to the bottom of each page. A. Header, B. Footer, C. Symbols, D. Shapes. The correct answer is B. Footer. E. Answer the following questions. 1. Write the steps to apply styles to a paragraph. So kids, to change the styles of a paragraph, there are total 5 to 6 steps which we have studied in detail. So refer to the chapter. 2. State the difference between header and footer.
The answer is the difference between header and footer is header is used to put information at the top of the page, whereas footer is used to put the information at the bottom of the page. 3. What is the use of the drop cap effect in the word? The answer is the use of the drop cap effect in the word is to highlight the first letter of the paragraph by writing it as in the capital letter and in the big size so that the documents make attractive and looks decorative. 2. What do you mean by subscript? The answer is the subscript is an option in the MS Word which is used to make the words right below the baseline in the smaller size. 5. How can we set the page margins? So kids, to set the page margins in the Word document, we have read the 6 steps, so refer to the chapter. Critical thinking. A. Find the group names in the grid where the following options can be found. So kids, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है, आपको जो है यहाँ पे राइट डाउन करना है कि ये ऑप्शंस जो है आपको कौन से ग्रुप में जाकर मिलेंगे इन दी वर्ड. 1. Page margins. It will be found in the page setup group. 2. Symbols. It will be found in the symbols group. 3. Fascias. It will be found in the proofing group. 4. Shapes. It will be found in the illustration group. 'And kids, अब जो है आपको इन ग्रुप्स के नेम जो है इस गिवन वर्ड ग्रिड में फाइंड करनी है. फॉर एग्जाम्पल, proofing group is mentioned as here. So kids, proofing group is in the word grid here. So we will circle the word proofing. Likewise kids, आप जो है rest 3 जो है इस word grid में find करेंगे. B. A book publishing house wants to write the name of their company at the bottom of every page. Suggest the ways to do so. So kids, एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, उसे जो है हर पेज के बॉटम की साइड पे जो है नेम को टाइप करना है. So kids, एक बुक पब्लिशिंग कंपनी है, उसे जो है हर पेज के बॉटम पे जो है कंपनी का नेम टाइप करना है. So he will use the option of footer. Teamwork. A. Collect information of photosynthesis and make a project in MS Word. So kids, इसमें जो है आप photosynthesis के ऊपर information को collect करेंगे and MS Word पे जो है project को create करेंगे. B. Write the equation of photosynthesis using subscripts. And kids, आप जो है photosynthesis की equation को लिखेंगे MS Word पे with the help of subscripts. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoyed the learning. See you in next class.